السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آفٹر دی اسٹارم قسط نمبر 11۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ صدائے کشمیر کا لنگر پانی میں گرا دیا گیا۔ عرشے پر ڈیوڈ کیلی کو کینوس کے سلنڈر سے نکال لیا گیا۔ یہ ہے تمہارا مطلوبہ آدمی، جے نے افسر خان سے کہا، بلکہ یوں کہو کہ یہ ہے ہمارے 2 کروڑ ڈالر۔ افسر خان نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ وہ بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جے سیمور اور صفدر دارے کی شکل میں بے ہوش ڈیوڈ کے گرد کھڑے تھے۔ سعادت لنگر گرانے کے بعد انجن بند کرنے کے لیے واپس آیا۔ ان کے سامنے دور تک پانی اور دھند کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کیلی نے پہلو بدلا۔ اس کے چہرے کے عضلات پھڑک رہے تھے۔ لگتا تھا وہ کسی خواب سے بیدار ہونے کے عمل سے گزر رہا ہے۔ اسے پینٹوتھول اور دے دو، جے نے سیمور سے کہا۔ 3را ڈوز۔ سنو، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ریٹا نے اس کے بارے میں کیا بتایا تھا۔ یہ دعا خطرناک ہے، سیمور نے کہا۔ ہم اس کے ہوش میں آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے کسی کا چہرہ نہ دیکھ پائے، خاص طور پر میرا چہرہ، اس لیے کہ مجھے فوراً پہچان لے گا۔ تو اس کے سر پر ضرب لگا کر بے ہوش کر دو، سیمور نے کہا۔ میرے ہاتھ سے تو آج پہلے ہی آدمی ضائع ہو چکا ہے۔ دیکھو، ہمیں بس منصوبے کے مطابق کام کرتے رہنا ہے۔ سیمور بڑبڑاتا ہوا نیچے چلا گیا، تاہم ذرا دیر بعد اوپر آج اس کے ہاتھ میں بھری ہوئی سرنج تھی۔ انہوں نے مل کر کیلی کی جیکٹ اتاری اور قمیض کی آستین اوپر چڑھائی۔ سیمور نے اس بار اس کا بایاں بازو منتخب کیا۔ اس نے سرنج کی سوئی اس کے نس میں داخل کر دی۔ سرنج دھیرے دھیرے محلول سے خالی ہونے لگی۔ آدھے منٹ کے بعد کیلی کا جسم پھر ڈھیلا اور پرسکون ہو گیا۔ اس کی سانس پھر پرشور اور ناہموار ہو گئی۔ بس اب چلنے دو، جے نے کہا۔ انہوں نے کیلی کو رامو کی کشتی میں منتقل کیا اور کشتی کو لے کر خفیہ پہاڑی کھو کی طرف چل دیے۔ 11 بجے ڈیوڈ کیلی کے اغوا کی باضابطہ پہلی خبر جاری کر دی گئی۔ بیان وزارت اطلاعات و امریکی قونصلیٹ نے مشترکہ طور پر جاری کیا تھا۔ اندرونی ٹیکلس سسٹم کے ذریعے وہ بیان تمام اخباروں تک پہنچایا۔ پھر انٹرنیشنل وائر سروسز کے ذریعے یہ خبر غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں تک پہنچی۔ سب سے پہلی خبر ایسوسی ایٹڈ پریس نے جاری کی۔ 21 اگست آج صبح بمبئی میں ایک امریکی سفارتکار کو گن پوائنٹ پر اغوا کر لیا گیا۔ سفارتکار کار میں اپنے دفتر جا رہا تھا۔ اس کے شوفر کو شوٹ کر دیا گیا۔ 1 منٹ بعد دوسرا نشریہ جاری ہوا۔ 21 اگست سفارتکار کا نام ڈیوڈ کیلی ہے۔ 48 سالہ ڈیوڈ کیلی بمبئی میں امریکی قونصلیٹ میں وائس کونسل تھا۔ مجرموں کی اب تک شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ انہوں نے کیلی کی کار کو بمبئی اور پونا کی درمیانی سرنگ میں روکا تھا۔ کیلی کے شوفر مائیکل پر 2 گولیاں چلائی گئی۔ نیو چائنا نیوز ایجنسی کے دفتر میں آپریٹر نے ٹیلی پرنٹر سے اے پی کے دونوں پیغامات پھاڑے اور انہیں آپس میں نتھی کر کے ڈیوٹی ایڈیٹر کی میز پر لے گیا۔ ڈیوٹی ایڈیٹر نے پیغام پڑھے اور آپریٹر کو رخصت کر دیا۔ پھر وہ اٹھ اور سیلو کی طرف بڑھ گیا۔ اوپر ایک طویل راہداری میں چلنے کے بعد اس نے ایک دروازے پر دستک دی۔ کاؤلنگ نے اسے اندر بلا لیا۔ کاؤلنگ محض صحافی نہیں، چین کی کمیونسٹ پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کا رکن بھی تھا۔ کاؤ بہت پرانا انقلابی تھا۔ 14 سال کی عمر میں اس نے ماؤ زے تنگ کے لانگ مارچ میں حصہ لیا تھا۔ پھر وہ جاپانیوں کے خلاف بھی لڑا تھا۔ اس کے اپنے سیاسی عزائم بالکل نہیں تھے، اس لیے وہ ہر قیادت کی آنکھ کا تارا رہا۔ وہ پارٹی کے لیے انتھک کام کرتا تھا۔ کاؤلنگ نے ایسوسی ایٹڈ پریس کے دونوں مختصر پیغامات پڑھے، پھر اسے اپنا چشمہ ٹھیک طرح سے جما کر رکھا اور انہیں دوبارہ پڑھا۔ در حقیقت اس دوران وہ سوچ رہا تھا۔ بالآخر اس خاموشی کو ڈیوٹی ایڈیٹر نے توڑا۔ میرا خیال تھا کامریڈ کہ آپ انہیں فوراً دیکھنا چاہیں گے۔ شکریہ چین۔ اہمیت کا احساس مجھے کیلی کے نام سے ہوا تھا، ڈیوٹی ایڈیٹر نے کہا۔ ابھی کوئی 6 ماہ پہلے میں نے اس کے متعلق ایک رپورٹ فائل کی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ڈیوڈ کیلی ممکنہ طور پر CIA کا افسر ہے۔ اس فائل کو مکمل ہو جانا چاہیے۔ CIA سے اس کے متعلق تصدیق ہو چکی ہے۔ مزید خبریں آئیں تو فوراً مجھے پہنچانا۔ یہ خبر پیکنگ بھیج دوں؟ ہاں، لیکن صرف اوپن نیوز سرکٹ کے ذریعے اور 1 گھنٹے کی تاخیر سے۔ مضمون مختصر کرنے کے بعد یہ ظاہر نہ ہو کہ ہم نے اس خبر کو کوئی خصوصی اہمیت دی ہے۔ اپنے منسٹری کو میں خود مطلع کر دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس خبر میں ہماری دلچسپی ہے۔ یہ معاملہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، کاؤ نے ٹیلی پرنٹر پیغام کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اسے کس نے اغوا کیا ہوگا؟ ڈیوٹی ایڈیٹر نے پوچھا۔ نہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہیڈ آف انویسٹیگیشن سے کہو کہ پولیس کی اب تک کی پروگریس معلوم کر کے مجھے بتائے۔ ڈیوٹی ایڈیٹر کے جانے کے بعد کاؤلنگ اٹھا اور کونے میں رکھے فائلیں کیبنٹ کی طرف گیا۔ اس نے اوپری دراز کھول کر ایک بوتل اور گلاس نکالا اور اپنے شراب منہ ڈالی۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی۔ جام اس نے ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا۔ بوتل اور گلاس دراز میں رکھ کر وہ باہر نکلا۔ اب اسے پیکنگ سے رابطہ کرنا تھا۔ نارکوٹکس بیورو میں اس صبح انسپیکٹر وبھاکر کو مذاق کا نشانہ بنا۔
वो जूनी याओ के फ्लैट में बंद पाया गया था। जूनी याओ वो शख्स था जिस पर विभाकर अस्से से हाथ डालने का ख्वाहिशमंद था। विभाकर का सूजा हुआ हाथ भी इसके साथियों के दिल में इसके लिए हमदर्दी न जगा सका, जिसे इसके बयान के मुताबिक किसी अमरीकी सेलर ने कुचला था। इसकी एक उंगली टूट चुकी थी और अब इसके साथ खपची बंधी हुई थी। विभाकर के कुछ साथियों का कहना था कि इसके साथ ही कुछ होना चाहिए था, इसलिए कि इसे अपने जोर पर दूसरों के ताउन के बगैर सब कुछ करने की हवस थी। महकमे में 2 अफराद ऐसे भी थे जिनके लिए वो सब कुछ मज़ाक खेज नहीं था, एक खुद विभाकर और दूसरे इसके महकमे का चीफ। इस वक्त सुबह से अब तक विभाकर की अपने चीफ के दूसरी पेशी थी। बैठ जाओ, तुम्हारा कोर्ट मार्शल नहीं हो रहा, कम अज कम फिल वक्त नहीं। चीफ ने झुंझलाकर कहा, मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की है और तुम्हारे माजी के बारे में अच्छी रिपोर्ट दी है। अब ये बाद में पता चलेगा कि इसका क्या असर हुआ और तुम्हारा क्या बनने वाला है। फिलहाल तो वो लोग अगवा के केस में बुरी तरह उलझे हुए हैं। वैसे तुम्हारी अगर मुअत्तली और सच जवाब तलबी पर जान छूट जाए तो बहुत गनीमत है। जी सर। वैसे तुमने बड़ी हिमाकत की, सुप्रीडेंट ने कहा। मैं तुम्हें पहले भी तंबीह कर चुका हूं कि हर मामला अकेले ही निपटाने की कोशिश न किया करो। ये केस मैंने खराब कर दिया है, विभाकर ने इतराफ किया है। मैंने बहरहाल एक सबक सीख लिया है। मैंने इस अमरीकी को कमतर समझा, मुझे इससे मुजामत की तोक़ो नहीं थे। बहरहाल याओ तो फंसी गया। इसके फ्लैट में नंबर 4 इतनी भारी मिकदार में मौजूद है कि 7वीं बहरी बेड़े का स्टाफ 1 माह तक नशे में धुत रहे। तुमने अपना पिस्तौल खो दिया, चीफ ने सख्त लहजे में कहा। इसके लिए कोई उज़र काबिल कबूल नहीं। इस सिलसिले में ज़ाब्ते बहुत सख्त हैं, क्योंकि इम्कान यही होता है कि हम में से किसी के हाथ से रिवाल्वर छिनेगा तो किसी जराइम पेशा के हाथ में ही जाएगा। अब बेहतरी इसी में है कि ये बात अखबार तक न पहुंचे। इस सेलर को ढूंढने के सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई सर? फ्लैट से कोई काम की चीज, कुछ वाज़ेह निशानात मिले हैं उंगलियों के, लेकिन हमारे किस काम के? अगर वो सेलर था तो इसका रिकॉर्ड हमारे यहाँ होने से रहा। बहरहाल रस्मी कार्रवाई तो होगी, रिकॉर्ड से चेक तो किया जाएगा। हमें बंदरगाह पर लंगरअंदाज जहाजों को और उनसे उतरने वाले सेलर्स को चेक करना होगा। हमारे यही एक इम्कान है, लेकिन इस काम में वक्त लगेगा। बंदरगाह में इस वक्त जहाजों की बड़ी तादाद मौजूद है। देखो विभाकर, अगर तुमने उसूली तौर पर पहले इससे बुनियादी बातें पूछ ली होती, मसलन इसका नाम और जिस जहाज से उतरा हो उसका नाम, तो हम उस वक्त इतने बेदस्तो पाना होते। मैंने सोचा था कि सब कुछ बाद में पूछ लूंगा, मुझे तो बस एक ही फिक्र थी, याओ को फांसने की। वह भागकर ने मुआज़रत ख़वाहाना लहजे में कहा। इसी वक्त फोन की घंटी बजी। सुप्रीडेंट ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। जी हाँ, क्यों? इसके लहजे में हल्की सी हैरत थी। फिर से नजर उठाकर विभाकर को देखा। जी हाँ, वो इस वक्त सामने ही बैठा है। विभाकर बेसाख्ता उठा, लेकिन चीफ ने से बैठने का इशारा किया। कोई 1 मिनट तक वो दूसरी तरफ से बोलने वाले की बात सुनता रहा। इसके चेहरे पर महवियत का तासुर था। फिर वो बोला, मैं इसे अभी आपके पास भेजता हूँ। रिसीवर रखने के बाद इसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और विभाकर को घूरने लगा। इसकी निगाहों में सख्ती थी। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम इतने बुरे धंस से हो। वो बोला, क्या मतलब सर? विभाकर गड़बड़ा गया। वो तुम्हारा पिस्तौल मिल गया है। मैं अब भी नहीं समझा सर। वो इस्तेमाल किया जा चुका है। जिस सफारतकार को आज सुबह अगवा किया गया, इसके ड्राइवर को तुम्हारे पिस्तौल से शूट किया गया है। विभाकर बेसाख्त उठ खड़ा हुआ। वो बड़ी बेयकीनी से अपने चीफ को देख रहा था। ये कैसे मुमकिन है सर? असले की चेकिंग के माहिरीन का यही कहना है। भगवान, लेकिन सर सोचे तो, मेरा पिस्तौल गुज़श्ता रात ही छीना है और ये सुबह अगवा की वारदात हुई। फर्क सिर्फ 10-12 घंटे का है। वारदात करने वाले महीनों से मनसूबाबंदी कर रहे होंगे। यह तो मुमकिन ही नहीं कि मेरा पिस्तौल आखिरी लम्हों में हासिल करना इनके मंसूबे में शामिल हो। विभाकर ने कहा, और फिर ये मुकामी सियासी चक्कर है, इसमें किसी गैर मुल्की सेलर का क्या दखल? मुमकिन है सेलर ने तुम्हारा रिवॉल्वर किसी को बेच दिया हो। चीफ ने कंधे झटकते हुए कहा। वैसे बात इतनी अहम नहीं कि इन्हें तुम्हारा पिस्तौल कैसे मिला। ये जानना अहम है कि वो लोग कौन है। इस सिलसिले में तुम सीआईडी के काम आ सकते हो। असले के माहिरीन की रिपोर्ट क्या है? सैमुअल विभाकर ने पूछा। तुम्हें याद है तुमने अपने पिस्तौल से एक ही फायर किया था? जी हाँ सर। विभाकर को खूब याद था। एक छापे के दौरान इसने वो फायर किया था। बैलिस्टिक वालों ने तुम्हारा वो कारतूसी कार्ड में रख लिया था। चीफ ने कहा, अभी चंद घंटे पहले इस सफारतकार के शोफर के जिस्म से गोली निकाली गई। तुम्हारी गोली इकलौती थी। कंप्यूटर ने तजवीज़ पेश की कि ताज़ा गोली को इन गोलियों से मैच करके देखा जाए, जो अब तक कहीं मैच नहीं करती। इसके नतीजे में पता चल गया कि वो गोली तुम्हारे पिस्तौल से चलाई गई है। विभाकर ने सर को तो फीमी जुम्बश थी। तजर्बे ने से बता दिया था कि पुलिस के महकमे में असले के माहिर वो लोग होते हैं जिनसे कभी गलती नहीं होती। हर रिवाल्वर, हर गन का अपना एक मखसूस और मुनफरिद निशान होता है। एक जैसे हजारों रिवाल्वरों की गोलियों के निशानात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अब क्या होगा सर? मैं तुम्हें सीआईडी डिपार्टमेंट भेज रहा हूँ। चीफ ने कहा, तुम सुनील मोहन के स्टाफ के साथ मिलकर काम करोगे। तुम इनकी हर मुमकिन मदद करोगे। जगन्नाथ चीनी दंदान साज यूतन के मतब में दाखिल हुआ। इसने तन के असिस्टेंट से पूछा, डॉक्टर मौजूद है? जी हाँ, असिस्टेंट ने जवाब दिया। जगन दंदाज साज के कमरे में दाखिल हुआ।
वहाँ डेंटल सर्जरी का तमाम सामान मौजूद था। तन अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठा था। जगन को देखकर इसे भौंकने चुकाई, फिर अपने असिस्टेंट को आवाज दी। असिस्टेंट आया तो उसने कहा, अब मुझे डिस्टर्ब न करना। असिस्टेंट के जाने के बाद वो जगन की तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे पास एक ही काम से आता हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जगन ने कहा, पिछले हफ्ते मैं तुम्हारी काफी मदद कर चुका हूँ। ये मुख्तलिफ मामला है और अर्जेंट नोयत का है। मुझे जो कुछ मालूम था मैं बता चुका हूँ। ये वो मामला नहीं। पहले सुकून से मेरी बात सुनो। जगन और चीनी दंदान साज का जो ताल्लुक था, इसे स्पेशल ब्रांच के अलावा कोई पुलिसमैन नहीं समझ सकता था। वो दोनों एक दूसरे पर एतबार नहीं करते थे, बस वो गर्ज और मतलब का ताल्लुक था। सच तो यह कि जगन यूतन को नापसंद करता था और जानता था कि दूसरी तरफ भी यही हाल है। यूतन कोई रिवायती मुखबर नहीं था। वो ना मुआवजा वसूल करता था मुखबरी का और ना ही मुजरिम बरादरी के साथ बेवफाई करता था। वो तमाम मालूमात मुजरिमों की उस बड़ी तंजीम से मंजूरी के बाद फराहम करता था जिसमें वो खुद शामिल था। इस तंजीम के अपने मुफादात थे जिन्हें अवलियत दी जाती थी। ये मामला मुख्तलिफ है, जगन ने तन से कहा। यह बात बस मेरे और तुम्हारे दरमियान है। चाहो तो अपने लोगों को बता दो, मुझे कोई एतराज नहीं। इस मामले में तुम्हें जाती तौर पर भी बहुत कुछ मिल सकता है। तन की भूमें तन गई। मैं बिकाऊ नहीं हूँ, तुम्हारा मुखबर नहीं हूँ। मैं ये कह भी नहीं रहा हूँ। जगन ने तहम्मुल से कहा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये मामला मुख्तलिफ है और हमारे लिए बहुत अहम है। तुमने वो खबर यकीनन सुनी होगी। तन ने आदतन चंद में तवक्कुफ किया। वो कभी किसी सवाल का फौरी जवाब नहीं देता था। बिलाखिर इसने कहा, हाँ सुनी है, अमरीकी सफारतकार के अगवा की खबर। हाँ, मैं इसी सिलसिले में तुम्हारी मदद चाहता हूँ, जगन ने कहा। वो तन के चेहरे को बहुत गौर से देख रहा था। इसे किसी रद्दअमल की तवक्को नहीं थी। तन का चेहरा हमेशा बेतासुर रहता था। तन ने मामूल के मुताबिक फिर चंद में तवक्कुफ किया। बिलाखिर कहा, मुझे इस सिलसिले में कुछ भी मालूम नहीं, कोई क्यास, कोई अंदाजा नहीं। देखो तन, मुझे यकीनी मालूमात की उम्मीद नहीं, मैं सिर्फ कोई लाइन चाहता हूँ। इस फर्दकार में तामुल छापामारों को भी दिलचस्पी हो सकती है। नहीं, इनका काम नहीं। एक बात सुनो, मुमकिन है कुछ देर बाद कोई तुम्हारे हलकों में इस सिलसिले में पूछ करता नजर आए। वो हम में से नहीं होगा। ऐसा हो तो मुझे ये जरूर बता देना कि इस सिलसिले में कौन दिलचस्पी ले रहा है। सुनो, क्या ये सिखों का काम हो सकता है? मैं कुछ नहीं कह सकता। मुमकिन है ये कम्युनिस्टों का काम हो। नहीं, इनका स्टाइल नहीं। फिर कौन हो सकता है? बहरहाल तुम कान खुले रखो, मैं तुमसे सिर्फ इतना मुतालबा कर रहा हूँ। तन का चेहरा बेतासुर रहा। तुमने कुछ मेरे फायदे की बात की थी, वो बोला। जगन ने अपना बटवा निकाला और 100 के 5 नोट गिनकर इसके बढ़ा दिए। यह है तुम्हारी जहमत का सिला। काम की कोई अहम इत्तला फराहम करोगे तो तगड़ा मुआवजा मिलेगा। यूतन ने हाथ बढ़ाकर नोट ले लिए और उठ खड़ा हुआ। मैं जो कुछ कर सका जरूर करूंगा, इसने कहा। शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। यूतन चल लम्हे हिचकिचाने के बाद बोला, एक बात मैं तुम्हें बता सकता हूँ। यह आते तुम्हारा ताकुब किया गया था। इसकी नजरें खिड़की पर जमी हुई थी। ताकुब किसने किया था? 2 अफराद थे। मैं इन्हें नहीं जानता। चीनी थे, नीली कार में। सीआईडी सेंटर में सुरंग में रिकॉर्ड होने वाले वीडियो टेप को चलाने की तैयारी हो रही थी। वो टेप अब तक कम से कम 20 बार चलाया जा चुका था। स्क्रीन से दूर 6-7 पुलिस अफसर नीम दायरा सा बनाए खड़े थे। ऑपरेटर टेप को रिवाइंड कर रहा था। ये वो वक्त था कि नारकोटिक्स के इंस्पेक्टर विभाकर ने सुनील मोहन के पास हाजिरी दी। तो तुम हो मेहरबान जिसने इन्हें पिस्तौल फराहम किया, सुनील ने कहा। जाहिरी सूरत तो यही है जनाब। सुनील ने अपने सर को मखसूस अंदाज में तो झुकाते हुए कहा, आज सुधी से तुम मुसलसल सदमा से आ रहे हो। बहुत खराब पोजीशन है तुम्हारी। जी हाँ जनाब, विभाकर बोला। इसे डर था कि पूरे दिन इसे इसी तरह की तंजिया गुफ्तगू सुननी होगी। गलतियां तो सबसे होती हैं, बस इसे अपनी बदकिस्मती समझो। तुम्हारा पिस्तौल न मिलता तो वो कहीं और से बंदोबस्त कर लेते। बहर कैफ, तुम्हारे पिस्तौल ने हमें कम से कम एक सुराग तो फराहम किया। अब मैं चाहता हूँ तुम ये वीडियो फिल्म देख लो जरा। विभाकर अपने दिल में सुनील के लिए शुक्रगुजारी महसूस के बगैर न रह सका। सुबह से अब तक वो पहला मौका था इसने कोई हौसला अफजा तबसरा सुना था। वो टीवी स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हो गया। ऑपरेटर ने बटन दबाया और स्क्रीन रोशन हो गई। फिर सुरंग से कारों की 2 कितारें गुजरती नजर आई। इनकी रफ्तार बहुत ज्यादा मालूम हो रही थी। यह इलेक्ट्रॉनिक कैमरे के जावे का कमाल था। वो सुरंग की दाएं जाने वाली दीवार पर ऊपर छत के करीब नस्ब था। गाड़ियां तस्वीर में दाहिनी ऊपरी कॉर्नर से दाखिल हो रही थी और बाएं निचली कॉर्नर से निकल रही थी। ध्यान से देखते रहो, सुनील ने विभाकर को हदायत की। मुमकिन है तुम्हें कोई काम की चीज नजर आ जाए। फिर स्क्रीन पर 2 कारें पहलू व बालू नमदार हुई। दोनों की रफ्तार तकरीबन बराबर थी। एक तो पहचान ली गई मर्सिडीज थी, दूसरी कोई अमेरिकी कार थी। अचानक एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दोनों गाड़ियों के दरमियान रेस करती नजर आई। वो स्क्वायर लाइन पर थी और इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वो दोनों कारों से आगे ही निकलने वाली थी कि कुछ हो गया। कैमरे से गिरफ्त नहीं ले सका, बस अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो दोनों में से किसी गाड़ी से टकराकर काबू से बाहर हो गई थी। वो इधर उधर झूली, फिर फिसलकर गिरी और वक्ती फ्रेम से बाहर हो गई। दोनों कारों की रफ्तार कम हुई और फिर वो रुक गई।
अमेरिकी कार से कोई शख्स उतरा और आगे की तरफ भागा। मर्सिडीज से 2 व्हीलर रिवाल्वर लिए उतरे। व्हीलर इसलिए कि वो ओवरऑल पहने हुए थे, इनके हाथों में दस्ताने और सरों पर हेलमेट थे। इनके चेहरे वाइस के पीछे छुपे हुए थे। एक अमेरिकी कार की तरफ भागा, दूसरा उस तरफ लपका जहां मोटरसाइकिल गिरा हुआ था। 1 मिनट, वे भागकर हिजानी लहजे में बोला, ये हिस्सा दोबारा नहीं चलाया जा सकता। ऑपरेटर ने टेप रोका, रिवाइंड किया और वही सीक्वेंस दोबारा चलाया। यही है, ये अमेरिकी, वे भागकर चिल्लाया। क्या मतलब, कौन है? सुनील ने पूछा। अपने जुस्से और जिस्मानी साख्त के एतबार से ये वही सेलर लगता है जिसने रात मुझसे पिस्तौल छीना था। देखते रहो, अभी ये आगे भी नजर आएगा। विभाकर ने इस बार पूरी फिल्म देखी। इसमें साउंड नहीं था, कैमरा भी मुतहर्रिक नहीं था। इस लिहाज से वो बेजान और बेतासुर सीन था। लगता था चाबी के सुराग से किसी कमरे का मंजर देखा जा रहा हो। ऐसे में आदमी भी कुछ देख सकता है जो इसकी आंख के सामने है। पूरे कमरे का मंजर नहीं समझा जा सकता। हाँ, अब बोलो, सुनील ने कहा। इसका चेहरा देखे बगैर मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये वही सेलर लगता है। इसका हरकत करने का अंदाज भी वैसा ही है, वही तेजी, वही फुर्ती जिसकी इतने भारी भरकम आदमी से तो उम्मीद नहीं की जा सकती। अब इस सेलर तक पहुंचना और जरूरी हो गया है, ख्वाब उस जुर्म में शरीक न रहा हो। बहरहाल वो शख्स है जिसने तुमसे पिस्तौल छीना। इसे तलाश कर लो तो यकीनी तफ्तीश की गाड़ी आगे बढ़ सकेगी। सुनील पलटा अपनी मेज की तरफ चल दिया। विभाकर इसके साथ था। बंदरगाह पर तुम्हारे सेलर के मुतालिक चेकिंग की गई है, सुनील ने कहा। गुज़श्ता रोज 700 सेलर मुख्तलिफ जहाजों से उतरे हैं। उसमें से कम अज कम 350 तुम्हारे बयान करदा हुलिया पर पूरे उतरते हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है, जो तसल्ली बख्श जवाब न दे पाए। इनकी अलग फहरिस्त बन रही है। तुम ऐसा करोगे, शनाख्ती परेड में चले जाओ। सुनील ने कुछ तवक्कुफ किया और फिर विभाकर को बहुत गौर से देखा। मुझे एक बात अजीब लगती है, ये जिन लोगों का भी काम है उन्होंने खासा पहले मंसूबा बनाया होगा। सवाल यह है कि इत्तफाकी तौर पर यहाँ आने वाला कोई सेलर इसमें कैसे मुलविस हो गया। ये बताओ, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वही सेलर था? मैं ये इतराफ़ कर लूँ, विभाकर हिचकिचाते हुए कहा कि मैंने खुद एक महफूजा कायम करके इससे पूछगछ शुरू की थी। बात यह है कि गैर मुल्की मल्लाहों में हम नारकोटिक्स वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी अमरीकी सेलर्स की तरफ से होती है। वही थोक के हिसाब से मंशियात खरीदते हैं, मकसद सप्लाई करना होता है। फिर इसका लहजा अमरीकियों को सा था। चुनांचे मैंने इससे छूटते ही पूछा, तुम अमरीकी हो, किसी शिप से उतरे हो? यूँ समझे कि मैंने इसके मुंह में अपने अल्फाज ठोंस दिए। और हाँ, मंशियात फिर जुनी याओ भी इसे सेलर ही समझता है। याओ से तुमने क्या कुछ उगलवाया? मैं याओ के साथ इसके फ्लैट में रात भर बंद रहा, विभाकर ने कहा और मुस्कुराया। और मैंने वक्त बर्बाद नहीं किया जनाब। याओ कहाँ है? हवालात में। सुनील के नाबीन के पास 6 टेलीफोन थे और मुसलसल कॉलें आ रही थी। वहाँ फौज का एक नुमाइंदा भी मौजूद था जो राब्ता अफसर की हैसियत से काम कर रहा था। लिबर्टी से एक शख्स आया। सुनील ने इससे कहा, कहो कुछ मिला भी? सॉरी सर, कार और मोटरसाइकिल पर उंगलियों के बेशुमार निशानात हैं, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में मौजूद निशानात से मैच नहीं करते। हैरत की कोई बात नहीं, सुनील ने गहरी सांस लेकर कहा। वो दस्ताने पहने हुए था। हाँ, या कोई फ्लैट से भी कुछ मिला? वो निशानात भी ट्रेस नहीं किए जा सकते। टेक्नीशियन ने कहा, मसला यह है कि हमारे पास सिर्फ मुजरिमों और सरकारी मुलाजमीन के निशानात अंगुश्त का रिकॉर्ड है। हाँ, महकमा महबूद आबादी के पास मुकम्मल रिकॉर्ड होगा। वो शनाख्ती कार्ड जारी करते वक्त उंगलियों के निशानात लेते हैं। ठीक है, इनसे बात करते हैं। इतने अहम केस में इन्हें हमारी मदद करना होगी, सुनील ने कहा। लेकिन एक दुश्वारी होगी। हमारा सिस्टम मशकूक अफराद को इनकी उंगली के निशानात के जरिए तलाश करने के लिए तरतीब दिया गया है, जबकि इन लोगों का रिकॉर्ड लोगों की पहचान के लिए मुरतब हुआ है। इन्हें किसी का नाम दो तो वो फौरन इसके निशानात निकाल देंगे, लेकिन निशानात दिए जाएं तो निशानात के हामिल का नाम बताना इनके सिस्टम से बाहर होगा, और हमारे पास फिलहाल कोई नाम नहीं है। बहरहाल तुमने काम की बात की है, शुक्रिया। सुनील ने लिबर्टी टेक्नीशियन को रुखसत किया। फिर वो भाग करके तो मुतवज्जो हुआ। मैं साफ गोई से काम लूंगा। अब तक हमें किलो नाम की कोई चीज मिली है तो वो ये सेलर है जिसने तुम्हारी उंगलियां कुचल डाली थी। हम ये यकीन से नहीं कह सकते कि इसने वारदात में हिस्सा लिया है या नहीं। इसे सिर्फ 2 अफराद शनाख्त कर सकते हैं, एक तुम और दूसरे मंशियात फरोज जूनी याओ। तुम ऐसा करो कि जाकर याओ पर थोड़ा सख्ती करके देखो, मुमकिन है वो कोई काम की बात उगल दे। यकीन करे फ्लैट में बंद होने के दौरान मैंने इसकी बहुत अच्छी खबर ली थी। विभाकर ने कहा, मुझे यकीन है कि वो जो कुछ भी जानता था मुझे बता चुका है। इस सेलर के मुतालिक कुछ भी नहीं जानता। इसके पास जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर गाहक भेजे जाते हैं और वो गाहकों के नाम और पतों में कभी दिलचस्पी नहीं लेता। फिर भी अगर किसी को टटोला जाए तो यादाश्त से बहुत दबी हुई मालूमात भी बरामद की जा सकती हैं। और वैसे भी याओ की सूरत बदल चुकी है। क्या मतलब सर? सुनील विभाकर को बहुत गौर से देख रहा था। देखो, हमें बड़ी मछली पकड़नी है। ऐसे में छोटी मछलियों की इतनी अहमियत नहीं रह जाती। तुम इसे यकीन दिला सकते हो कि इसके साथ नरमी बढ़ती जाएगी। प्रोसिक्यूशन इस केस में इंतहाई सजा पर जोर नहीं देगा। सर, मैंने इस मलून को फांसने के लिए महीनों मेहनत की है।
मैं तो इसे इंतहाई सजा दिलवाकर रहूंगा। विभाकर फट पड़ा। मैं तुम्हारे जज्बात समझ रहा हूँ, सुनील ने कहा। वो खुद 15 साल से इस पेशे से वाबस्ता था, जानता था कि किसी मुजरिम को राय देना किस कदर तकलीफ से होता है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा मामला अटका हुआ है। अगर याऊ इस मामले में हमारी मदद करे तो हम इसे ढील दे सकते हैं। जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है, तुम्हारी रात वाली नाकामी का दाग भी तो धुल जाएगा। इसी वक्त जगन्नाथ सुनील की मेज की तरफ चला आया। वो तुमसे मिलने के बाद सीधा यहाँ आया था। कोई प्रोग्रेस? सुनील ने इसे पूछा। फिलहाल तो मैं स्क्रोन बना रहा हूँ। इतना मालूम हो गया कि काली सेवक तंजीम को इस बारे में कुछ मालूम नहीं। जगन ने कहा, चेक करते रहो और कोई खबर देखें। अभी एक और शख्स से मिलने जा रहा हूँ जो रास्ते में ड्रॉप कर दोगे? विभाकर ने पूछा। चलो आ जाओ। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अमरीकी जासूस के अगवा की ये वारदात अभी जारी है।